Hi Navneet, welcome to the Deep Root Talks. Hello, Supreet. Thank you so much for having me. ये नवनीत का पहला पॉडकास्ट है. ये मुझे अभी पता चला है थोड़ी देर पहले. हाँ जी. एंड ये तो फिर दिस इज अ ग्रेट न्यूज़. So, Sushmita Sen and Aishwarya Rai won Miss World and Miss Universe. And that's when my parents said, हमारी बेटी बड़े होके मिस इंडिया बनेगी. उन्होंने सोचा था या यू ऑल्सो थॉट अबाउट मैं तो 2 साल की थी. इट? मैं तो 2 साल की थी तब. हाउ कुड आई इवन इमेजिन्ड कि ऐसा कुछ हो भी रहा अच्छा, है माइंड दुनिया में में. फीड हो गया था तब. वो फीड हो गया था. तो जैसे जैसे बड़ी हुई, सो दे सेड कि बड़े होके, एंड जैसे बच्चों को बोल देते हैं, तो मेरे माइंड में ऐसा सेट हो गया था, हाँ ये तो नॉर्मल है, यही तो बनना है. देर इज नो टू वेज अबाउट, और देर इज नॉट अ सेकेंडरी थॉट कि करना क्या है, यही तो करना है. बिकॉज बड़े ही इसी थॉट के साथ हुए हैं, सो देर इज नो सेकेंडरी थॉट. एंड in fact, when I was in 8th standard, जब स्कूल में बच्चे essays लिखते हैं, you're given this test, what do you want to become when you grow up? कोई लिखता है इंजीनियर, कोई लिखता है डॉक्टर. मैं लिखती हूँ मैं बड़े होके मिस यूनिवर्स बनूंगी. So you used to write that. हाँ हाँ, मैंने क्लास मतलब कोई और दूसरा सेकंड थॉट ही नहीं था कुछ नहीं और नहीं, करना है. पता ही नहीं था, और कुछ पता ही नहीं था. वाओ. तो वो किया, ऐसे लिख दिया, और उसमें सारी क्लास हंसने लग गई कि ये क्या होता है, मतलब बड़े होके मिस यूनिवर्स बनूंगी और आई ग्रो अप एंड बिकम मिस यूनिवर्स. सो व्हाट इज दिस essay? Even the teacher called. She said, yeah, but it's okay, but what do you want to become? Uh-huh. I said, I want to become this. ठीक है, okay, finished. And nobody actually believed. And बट डिड योर पेरेंट्स चेंज के बच्चे के नहीं नहीं छोड़ मिस यूनिवर्स की बनना है. सो वर दे लाइक आप No. यही करते रहो या फिर वो बाद में हो गए थे चेंज? See, education and everything was important, हाँ. and is still important, but they were always with me. They were never of the thought कि क्या करना है, क्यों करना है. नहीं, करो, आप कर सकते हो, आप करो. And they were always supportive. They never stopped me for whether I want to participate in school extracurricular activities, which I did a lot. And And you even have studied across the country, right? across the country. Yeah. And but even when it came to Miss India, it was never ki mat karo. So there was a point where I mean, I was still in university, second year, and this was the 50th Miss India when I participated. When my father said, "Do you want to do this after you finish your graduation?" Because one, this is the 50th year, and it'll be much bigger and much more difficult than the previous years, or what will happen in the future. You still have time, you're still very young, and you want to try this after you finish graduation. I said, नहीं, कर लेते हैं बस अभी. ये 50th है, चलो, फिर तो बिल्कुल करेंगे. With Even that better. number 50 जो Golden Jubilee. Golden Jubilee वाला. So I said, सही. even better, let's do it right away. So And you were excited throughout. yeah, excited throughout. And how. And I won Miss Chandigarh, and then as a Chandigarh winner, I got to go for the finals. I was one of the finalists for Miss India. Then there was 35 days of training, and I think that training makes whole lot of difference. What is that training about? क्या होता है उसमें? So training is, you have grooming, you have mentors who come from various walks of life. I was so raw and so new to all of this. I had, I mean, forget walking on the ramp. I didn't know anything about it. अपना मेकअप भी करना है. मेकअप करने के लिए स्कूल में क्या होता था, आईलाइनर लगाया, एट द मोस्ट लिप ग्लॉस लगाया, एंड चले गए. सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फैशन. And then I was exposed to the industry and everything that happens, facing the camera, walking on the ramp, talk with confidence on stage. I would say when I stood on that ramp for the first time for training, I couldn't talk. I used to freeze and not be able to talk. But it is with that training that I would say I got the confidence to stand up there and talk. Especially, I mean, वैसे जितनी मर्जी बातें करा लो, कोई problem नहीं है. But when you're put in that spotlight and you're asked a question, you have to answer it. What do? जिसने कभी नहीं किया. स्कूल में भी I've participated in a lot of things, but whenever it came to
standing in that spot and answering things, it was always very difficult for me. I would freeze. And that, of course, I learnt during the training. Facing the camera, giving your interviews, and so much more. It just completely changes your personality. And I think good thing was that I was quite adaptable, and because I was so new and raw, I had never experienced. It was all for the first time for me. I had never gone into any other प्रोफेशनल पैजेंट ट्रेनिंग सो मेरे लिए तो एक क्लीन स्लेट था जिस पे जो सिखा दोगे मैं सीख लूँगी सो इट वाज दैट व्हेन यू आर एट दैट एज ना तो थोड़ा आई थिंक सीखना भी और इजी हो जाता है दैट एज एंड ऑल्सो सीखने का क्रेडिट आई वुड से आई विल गिव इट टू द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड एंड we were made to travel every 2 years, change schools, and that makes us quite adaptable and very, very flexible to new learnings, new situations, new places, new people. Every 2 years. I mean, आप शुरू करते हो बचपन से and then... So, do you feel that army kids are much more confident than other regular civilian kids? देखो मुझसे पूछोगे तो मैं तो थोड़ा बायस होऊंगी लेकिन but I think it totally depends on your upbringing. Yes, Fauji kids always have that edge that we get to meet so many people. क्योंकि ये मैंने देखा है कि जितने भी मैं फौजी किड्स मिलता हूँ एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है नेचुरल कॉन्फिडेंस वो हो जाता है आप एक नए हर 2 साल 3 साल में आप एक नए शहर जा रहे हो नए फ्रेंड्स बना रहे हो नए टीचर्स तो आप कंफर्ट जोन से बाहर ही होते हो हमेशा कंफर्ट जोन से आपका जैसे ही आप कंफर्टेबल होने लगते हो तो आपको लगता है ये कंफर्ट नहीं चाहिए वापस चलो कहीं और किसी और शहर चलते हैं हो गया अभी यहाँ का टाइम मुझे ना आज एक ये दिस इज आई थिंक प्रॉब्ली वी आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि विल बी डूइंग डीप रूट टॉक्स एज योर जर्नी प्रोग्रेसेस तो जर्नी के साथ साथ ही ये डीप रूट टॉक्स आएंगी तो इसी पे आप पेजेंट्स के बारे में बात करें तो हाउ बिग इज ये मिस इंडिया वर्ल्ड जो पेजेंट है हाउ बिग इज इट वेल आई थिंक इट इज़ लाइफ चेंजिंग बिग. It is a platform that completely transforms your life. It gives you, I would say, a position or a platform where you get to do so much. You get that platform. You reach out to people. There is so much that you can do with that platform. Of course, I am now in the film industry. I did all of that because of Miss India. मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं था दूर दूर तक आई कुडेंट हैव मेट एनीबॉडी ऑफ कोर्स शायद पढ़ाई कर लेती या जॉब कर लेती कुछ और करती आई डिड बीटेक इन टेलीविजन फिल्म प्रोडक्शन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी मे बी आई कुड हैव बीन बिहाइंड द कैमरा but I BTech think you started before Miss India but because the thought was always कि ये तो कर ही लेंगे नेक्स्ट आगे क्या करना है आगे शौक है फिल्म्स का सो फिल्म्स में एक्ट नहीं कर रहे थे तब तो बिहाइंड द कैमरा थे सो देन बट ऑफ कोर्स ऑल्सो दैट एडेड अ लॉट टुडे इफ आई सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई नो वेयर द लाइट इज आई नो वेयर द कैमरा इज आई नो what the director actually expects out of me because I've been behind the camera even if it is for a short while. I know what is happening. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि इसमें भी बीटेक होती है अगर होती तो शायद मैं भी वही करता बिकॉज दिस इज व्हेन यू वेयर योर पैशन लाइज एंड यू डू द सेम थिंग ना तो ऑब्वियसली आप इंजॉय करते हो प्रोसेस को Absolutely. एंड व्हेन यू बिकम मिस इंडिया तो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस भी इस लेवल पे जाता है एंड आपकी वो जो एजुकेशन मल्टीप्लाई कर देती है आपके अगले एक्सपीरियंसेस को. See, theoretical knowledge with your practical knowledge is always an add-on. When you know exactly what is happening. आप मतलब start तो education वहाँ से start हुई थी कि आप कैमरा के first day I think we learned about कैमरा के छोटे छोटे पार्ट्स भी क्या होते हैं अंदर एक प्रिज्म भी लगा होता है ये क्या छोटे छोटे every single part we learned to draw cameras. So that's where it started from. When you learn all of that and then you come in front of the camera, one, you appreciate everything that is happening behind there a lot more than अगर शायद वो सब नहीं सीखा होता तो लगता कि सारी नॉर्मल ही चीज़ें हैं.
वो नॉर्मल नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। अब जैसे हम बात करते हैं पेजेंट्स की, तो एक और चीज़ में आता है कि इट्स वेरी ग्लैमरस, प्लस फैशन इंडस्ट्री को लेके एक वो भी बहुत आते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री, एंड एक एक लोगों को मिथ्स भी हैं, या मिथ हैं या नहीं है, कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है. इज़ इट ट्रू? Well, to begin with, is it glamorous? Of course it is. And who doesn't like glamour? We love glamour. अटेंशन बहुत मिलती है. Attention मिलती है, but glamour is, I think glamour is fun. If you don't like glamour, then this industry is not for you. And attention, yes, there is a lot of attention. Then you have to see how do you live with that attention. You've chosen a path for yourself, live with it. जब आपको अटेंशन मिल रही है तो उसको अप्रिशिएट करो, बिकॉज जब नहीं मिलेगी तो बहुत तकलीफ होगी. सो हाँ, जब वो फिर बाद में क्योंकि देर इज़ अ टाइम, वो एक साल के लिए तो यू आर एवरीवेयर एंड यू आर. एक साल के लिए भी, बट आई थिंक लाइक आई मीन वी आर ऑलवेज टोल्ड वंस अ मिस इंडिया फॉर एवर अ मिस इंडिया. सो आपको वो इम्पोर्टेंस और वो अटेंशन हमेशा मिलेगी आप जहाँ भी जाओगे. आई मीन नाउ इन सो मेनी ईयर्स ऑफ मिस इंडिया यू कैन काउंट कितने मिस इंडियाज हुए हैं. हर साल सिर्फ एक ही होती है, विनर तो एक ही है. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पैजेंट्स, अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल पैजेंट्स वेयर गर्ल्स रिप्रेजेंट इंडिया, बट जो मिस इंडिया की विनर है वो तो एक ही है. जब तक मैं बनी थी सिर्फ 50 थी. So you were the 50th. I was the 50th. So it is उस चीज़ को आपके सडनली ये हिट करना कि हाँ यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स, सिर्फ इतना ही है. When you became Miss India उस साल, तो वापस आने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, एंड व्हाट वाज दैट? वो एक क्या वेलकम था, क्या माहौल था? वेलकम बहुत अच्छा था. मैं तो पटियाला में थी, बिकॉज आई वाज स्टडिंग इन पटियाला देन. वी वर लिविंग देयर. और आई थिंक छोटे शहरों में जो लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं वो it is so beautiful, it is so wholesome. I mean वो सब तो शायद expected भी नहीं था. I think मुझे ये सिंक इन होने के लिए बहुत टाइम लगा कि मैं मिस इंडिया जीत गई हूँ, बिकॉज मेरे लिए बचपन से एक बहुत नॉर्मल बात थी कि ये तो कर लेना है, ये तो ठीक है, ये तो होना है. इट वॉज नेवर समथिंग कि ऐसा कुछ अचीव कर जाएंगे या कुछ. ये बाद में रियलाइज, क्योंकि 2 साल की उम्र से पता था सिर्फ यही करना है. आई थिंक आई वॉज लिविंग दैट. हाँ. बस वही था उसमें. सो आई वॉज स्टिल वेरी नॉर्मल अबाउट कि हाँ ये होना था, ये हुआ है. इवन आफ्टर आई वन, ऑफ कोर्स इट इज़ दैट मोमेंट दैट चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर. एंड आइदर दैट मोमेंट चेंज्ड माई लाइफ और एल्स वही मोमेंट होता जो शायद कभी भी कुछ नहीं होता. एक जब हम बात करते हैं, जैसे ग्लैमर है, अटेंशन है, सब कुछ है, पर साथ में फैमिलीज डरती भी है, घबराती भी है कि कई बार अगर आप ग्लैमर मिलेगा, अटेंशन मिलेगी, तो ख़राब एलिमेंट्स भी होंगे. तो कहते हैं कि कई बार लाइन बड़ी गंदी है, जैसे वो बोलते हैं ये लाइन में. तो इज़ इट ट्रू, या फिर सी फैमिलीज तो किसी भी, जैसे आपने पहले भी पूछा कि क्या ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वो किस इंडस्ट्री में नहीं है. आप कहीं पे भी देखोगे किसी भी बट डिड यू इंडस्ट्री में. फेस एनी ऑफ दैट, या फिर I have been very fortunate to come across very good people, and then again, I feel that it is the way you conduct yourself. आप कहीं पे भी थोड़ा भी लूज वो करोगे तो बस वही है, हाथ पकड़ने वाली बात है कि आप हाथ दो तो सामने से कोई हाथ पकड़ेगा. अदरवाइज आप अपना एक थोड़ा सा मेंटेन करके रखो दैट दिस इज हाउ आई कंडक्ट माई सेल्फ, यू गेट दैट रिस्पेक्ट. Nobody is going to chase you anywhere in the world. There are different kind of people in every industry, everywhere. बस फिल्म इंडस्ट्री को या फिर फैशन इंडस्ट्री को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, ज़्यादा बदनाम कर देते हैं. ज़्यादा बदनाम कर देते हैं या क्या करते हैं वो, आई थिंक दैट इज़ अगेन सब्जेक्टिव. बट हाँ, उसके बारे में बात ज़्यादा होती है. फिल्म्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में सबको बात करना अच्छा लगता है.
क्योंकि बार बार नजर उसमें आते इतना हैं। सा इंसिडेंट होएगा, इतनी बड़ी बात होएगी, हर जगह होते हैं। आप किसी ऑफिसेज में देखो, लोगों के कभी एक्सपीरियंसेस सुनो कि हो क्या रहा है उनके बारे में, बिकॉज दे फील दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू टेल देयर स्टोरीज, इसलिए उनकी बात कहीं पे सुनी नहीं जाती। बट लोग बहुत परेशान होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आई थिंक थोड़ा सा लोगों में करेज भी आ जाता है कि चलो हम, हमारे साथ क्या हुआ है या अगर कोई इशू है हम उसके बारे में बात करते हैं, सो दैट किसी और के साथ नहीं हो। उसके बारे में बात ज़्यादा होती है बिकॉज लोग पॉपुलर हैं, ऑफ कोर्स दे आर लव्ड बाय सो मेनी, तो लोग उनको सपोर्ट करने भी आते हैं। एक टाइम आया था जब ये टर्म बड़ा फेमस हुआ था, कास्टिंग काउच। चाहे वो ज़्यादातर ऑब्वियसली फॉर विमेन ज़्यादा बात हुई थी कि डज दैट एग्जिस्ट एक्चुअली? पर्सनल एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता होता है, बट कहीं ना कहीं अगर टर्म आई है तो कुछ तो होता होगा, कहीं तो हुआ होगा। आई थिंक आई हैव बीन एसोसिएटेड विद वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री who've been really respectful, really kind and nice. टचवुड, आई मीन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी के बारे में कुछ भी ऐसा क्यों बोलूँ, बट डेफिनेटली अगर लोगों ने बात की है तो कहीं ना कुछ तो हुआ होगा। आई थिंक कई बार ताली भी दोनों हाथों से, ताली दोनों हाथों से डेफिनेटली बजती है, बट मैं ब्लेम नहीं करूँगी ना उसमें किसी को भी। हर जगह पे लाइक आई सेड, जितने बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं तो कुछ खराब लोग भी होते हैं। उनको अगर ये लगा कि हमें इस मोमेंट का एडवांटेज लेना चाहिए, अगर उसके बारे में किसी ने बात भी की, आई मीन इफ़ वी टॉक अबाउट मी टू मूवमेंट, वो स्टार्ट हुआ था थोड़े थोड़े से, लेकिन वो इतना फायर बन गया कि बहुत चीज़ों में उसमें लोगों ने एडवांटेज भी ली, बोथ वेज, you know, and it also gave a lot of people a lot of fame and popularity. Yes. Even if it was in the wrong way or a negative publicity, but it was their time, which is not a right way to go about it, but again, to each its own, I would say. And casting couch जिस टाइम पे बातें चलती थी, तब तक तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि बस एक इंडस्ट्री को ख़राब करो, इसके बारे में ऐसा बात करो, बिकॉज वो कोई एक आधी स्टोरीज ऐसी हैं जो बाहर आई और लगा कि चलो लेट्स मेक दिस अ थिंग अबाउट द इंडस्ट्री। बट नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। बिफोर गेटिंग इनटू योर एक्टिंग जर्नी, हम बात करेंगे व्हेन यू वेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस वर्ल्ड। वो कैसा एक्सपीरियंस था, स्पेशली व्हेन यू मीट women from all across the world? एंड मैं एक जगह सुना था यू नाउ हैव वन फ्रेंड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। Yes. तो ये स्टोरी प्लीज शेयर। In about 140 countries, because when I participated, there were about 140 countries that participated in Miss World. It is an experience of a lifetime, I would say. I mean, उस टाइम पे एक बहुत अच्छी फिल्म की ऑफर आई थी मुझे, because that was right after Miss India. And मैं मिली थी उन लोगों से, आई विल नॉट नेम द प्रोजेक्ट और एनीथिंग, एंड दे सेड वी आर शूटिंग इन सितंबर, सो सितंबर में मिस वर्ल्ड था बाली में, एंड दे सेड 2014 2013 September was Miss World in Bali, and I was representing. तो मैं मिली उनसे, प्रोड्यूसर्स से, डायरेक्टर से, एंड दे सेड वी आर शूटिंग इन सितंबर। आई सेड ओहो, मेरा तो उस टाइम पे पैजेंट है, एंड दे वर क्वाइट कीन ऑन टेकिंग मी ऑन बोर्ड, एंड आई सेड नहीं, मेरा तो पैजेंट है उस टाइम पे। सो दे सेड यू विल हैव टू लेट गो ऑफ इट, दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। आई सेड नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बचपन से। आप थोड़ा सा उसको 1 महीना लेट कर लो, मैं कर लूँगी। So I was still very young, and मुझे नहीं पता था ना कि ये लोग कितने बड़े लोग हैं। मुझे I had always seen these people on television, but still मैं इतने ही normally बात करती थी कि नहीं, आप इसको थोड़ा सा आगे कर लो, 1 महीना लेट कर लो, तो कर लेंगे। So they said no, but to do something in life, you'll have to let go of some things. So when and you don't regret any part of it? ना बिल्कुल भी नहीं, and and when I left that meeting, I told them, I said नहीं, sorry,
ओलंपिक्स भी अगर होता ना तो शायद मैं उसमें दोबारा पार्टिसिपेट कर सकती थी द फॉलोइंग ईयर. दिस इज़ एक्चुअली अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. इसमें मैं दोबारा नहीं जा पाऊंगी. So even if it was Olympics, I could have gone the second time, the third time, or एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो right बहुत now बड़ी I'm चीज़ होती है. representing India, and I mean I will continue with the Miss World wala story. So I said no, uh, that cannot happen. I cannot let go of this, or I cannot back out of representing India at Miss World. That's a no-brainer. इसमें तो आप मुझे बोलो, कन्विंस करो, क्या करो. नो, देयर इज गुड मनी, देयर इज गुड फेम, यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स. वेयर डज योर पैशन लाई? ही सेड दैट मीन्स यू आर नॉट desperate enough to be in films. I said no, I am so sorry. I am very passionate about films, and I'm very passionate about the work I'll do in the future, but I'm not desperate, and I will not let go of this opportunity to represent my country at Miss World. And it is something that I've always wanted to do, and most importantly, it will not make my parents proud that I backed out of something. अभी फिल्म तो आई भी नहीं है, फिल्म की तो बात ही चल रही तो है. इसमें क्या क्या पता कल को तुम फौजी इथोस थे, वो वजह भी हो सकती है. कहीं ना कहीं अंडरलाइन फौजी बच्चा तो रहेगा ना थोड़ा सा. हाँ. वो तो थोड़ा थोड़ा रहेगा ही हमेशा. आई थिंक उसमें तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि फौजी एथोस कहाँ आते हैं, कहाँ नहीं आते, बिकॉज इट्स इन योर ब्लड. इट विल इवेंचुअली शो, इट विल कम आउट समवेयर और द अदर. And then coming back to Miss World, Miss World is, I think, from the first day when you're given your sash of India, that moment itself is, oh my God. I'm sure any girl who has represented India at any international pageant watching this can exactly relate to it, that when you wear that sash that says India, it is a moment I cannot comprehend that I feeling. can see that you I still have ca- goosebumps. I cannot comprehend that feeling, and especially when you step out of your room, 140 countries, हर कोई अलग अलग कंट्री से आया. आप उनके नाम याद रखने तो छोड़ो, आप प्रोनाउंस भी शायद ठीक से नहीं कर सकते हो. सो यू आर नोन बाय योर कंट्री. आवाज़ आएगी कहीं से, हाय इंडिया, एंड दैट मोमेंट इज रियली, ये क्या हुआ. सिमिलरली you refer to everybody as The country, the name of it. country. एंड पहले एक दो दिन तो वो फीलिंग ही नहीं जाती है, इंडिया मतलब. ओके, देन यू फील आई एम इंडिया. Yeah, I can see in your eyes right now. Yes, and वो इमोशन अभी भी नहीं गया. नहीं वो क्यों जाएगा. That's a वेल दैट हैपेंस, एंड देन खराब तब लगता है जब आप वापस आ जाते हो. हाँ. यहाँ आके तो हर कोई नवनीत बोलता है, हाँ. या जो भी गए हैं उनको So उनके you were नाम like, से. call me India. तो ऐसी फीलिंग, नवनीत क्यों, कॉल मी इंडिया. नो, हाँ. हाँ, मतलब ये क्या बात होती है, नाम क्यों लेना शुरू कर दिया. बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट फॉर अबाउट अ मंथ, एंड देन सडनली आप वापस से नवनीत बन गए. उसमें भी वापस आने में टाइम लगता है. तो उसमें जैसे ऑब्वियसली दे कैन बी ओनली वन विनर, तो क्या वो रीज़न होता है कि वो विनर, इज इट मोर ऑफ लक और व्हाट इज इट. सी ऑफ कोर्स हर किसी की डेस्टिनी है. लक डेफिनेटली वुड प्ले अ मेजर रोल, बट नॉट 100%. And there are various reasons why somebody would win. लक तो हर चीज़ में, आज हम यहाँ पे बैठे हैं इसमें भी कुछ ना कुछ तो लक प्ले करता है. Yes. But we cannot blame luck or put it all on luck that this person won because of luck. उसमें कुछ तो बात होगी जो जीतेगा. कहीं ना कहीं कुछ तो दिखा होगा, whether it is Miss India, Miss World, Miss Universe और any pageant, उनके जो भी सारे पैरामीटर्स हैं या जो भी उस विनर में दिखाई देता है, कुछ तो बात है ना.
that that girl stood out that evening, and she is then Miss World, Miss Universe. So who was your idol before you went for that? मतलब कौन आइडल थे इंडिया से, अगर कह सकेंगे, सुष्मिता सेन या सी आइडल्स ऐसे कोई भी नहीं थे अच्छा, कभी नहीं। भी, कि मुझे इनकी तरह बनना है, कभी नहीं था. बट ऑफ कोर्स बड़े हुए थे सिर्फ सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को देख के. सो उनको बहुत अप्रिशिएट किया, उनकी जर्नी को फॉलो किया, एंड देन ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ वर्क दे डिड, all of that was great. But there was never one person that I said that I would follow this person to represent India at Miss World or to even participate in Miss India. वो नहीं था. But I think मैं हर जगह पे ये बोलती थी that अगर आइडल का नाम लेना है, कई बार फॉर्म्स भी होते हैं, you have to write compulsory answers, that I've always written Sam Manekshaw. ओह, Yeah. सैम मानेकशॉ. एंड कब से यू आर यू नो? वो स्कूल से ही, जब से भी, आई थिंक ही वाज वन पर्सन, वन नो नॉनसेंस पर्सन. Nice. This is a new thing I've known today. So Sam Manekshaw. And तो फिर आप सैम बहादुर तो बहुत अच्छी लगी होगी मूवी. इस बारे में नहीं बात करते. अच्छा. हाँ, ठीक है. Yeah, I mean, of course, I think You must have read more. I have read more. Sam Manekshaw, of course. Vicky Kaushal as a performer is a wonderful performer. Whatever best he could do, he's done it. And Meghna Gulzar is a wonderful filmmaker. But there is so much more to Sam Manekshaw. The person that he was, the personality that he was, there is so much more. तो अगर विकी कौशल तो नो डाउट थे उसमें, अगर विकी कौशल की जगह और कौन हो सकता था उस रोल में? कोई नहीं हो सकता था, कोई हो ही नहीं सकता. ये पर्सनालिटी, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी है जिनको कौन प्ले करेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, द ऑरा, द पर्सनालिटी. आई मीन, Did you ever meet him? no, no. I wish I could, but no. And but there is so much if you read about him, and especially, I mean, because I come from an army background, and कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो कभी तो उन्होंने थोड़ा सा भी सर्व किया होगा, और सर्व नहीं किया होगा तो ऐसी लेगेसी से आते हैं लोग जिन्होंने उनके बारे में बहुत क्लोजली जानते थे. सो वो सारी बातें सुन के और टू, देयर इज सो मच. बट जो भी एफर्ट्स किए हैं बनाने में, ऑफ कोर्स दोज एफर्ट्स वर ग्रेट. जितना अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते थे. आई थिंक ये फिल्मों से बस एक बेनिफिट होता है कि लॉट ऑफ जनरेशंस दे डोंट मिस नोइंग अ पर्सनालिटी लाइक जैसे सैम मानेकशॉ. अगर वो फिल्मों से थोड़ा सा इजी हो जाता लोगों को जानना भी, थोड़ा सा पता तो चलता है. दैट इज ट्रू. बट आई वुड अगेन से कि ऑडियंस अपने पर्सपेक्टिव को सिर्फ उतना ना रखे जो उन्होंने फिल्म में देखा है. डीप जाए और डीप रूट में जाए, डीप रूट में जाए, डिग डीपर. एंड स्पेशली अगर आपको फिल्म से, वो तो फिल्म क्या 2, 2.5, 3 घंटे की फिल्म है ना, उससे ज़्यादा आप इतनी बड़ी लाइफ के बारे में क्या दिखाओगे? एक इंसान जिसका हर दिन इतना ही ग्रैंड हो, आप उसके बारे में 3 घंटे की फिल्म में क्या क्या दिखाओगे? सो अगर आपको वो 3 घंटे की फिल्म अच्छी लगी है, and you've been inspired even for a minute, then go dig deeper and learn more about that personality.